Hello, good evening, namaskar, swagat. Yet another Facebook Live from Music Veranda and Music Veranda, a world which is full of love, compassion, a different world. So let's see what Sahib has to add to it. Hi, Sahib. Over to you, sir. थैंक यू नीला मैम। प्रणाम ब्रह्मानंद सर, प्रणाम मेरी प्यार सी मेरी फैमिली को। तो मैं ब्रह्मानंद सर के लिए बहुत प्यार से गीत लेके आया हूँ और उस गीत के बोल कुछ ऐसे। आओ तुम्हें जानते ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, एक छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओ तुम्हें जानते जाएं, ये है दुनिया दूर आसमां पे, ना बिछड़े ओ ये वहाँ पे ऐसी भी ऐसा भी ओ तुम्हें जानते प्यार भरे सपने सजाए, एक छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बनाए। ओ तुम्हें जानते जाए। थैंक यू। Wow. थैंक यू सो मच। और ये म्यूजिक वरांडा है जो एक सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ हम बोलते हैं हर सोल को गाना गाना चाहिए। दिस इज अ प्लेस वेयर वी डोंट नीड सेलिब्रिटीज, यू डोंट हैव टू बी अ सेलिब्रिटी और एन इन्फ्लुएंसर टू शेयर। सो दिस इज म्यूजिक वरांडा। 3 साल से हम रोज गुलजार होते हैं, वर्चुअली फिजिकली भी हम लोग बहुत मिलते हैं, बैठक करते हैं, गाने गाते हैं, गपशप करते हैं और मजा करते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मजा करने के लिए है। A big welcome to everyone, people who have joined from different timelines, from different cities. Such a beautiful evening. और आज Mother's Day है, so it's a very special day. और क्या कोइंसिडेंस तो नहीं कहेंगे, ये तो लगता है यूनिवर्स का ही कोई कॉन्स्पिरेसी है कि हम ब्रह्मानंद सर का बर्थडे भी आज ही मना रहे हैं। so, क्योंकि मदर्स डे के जो ट्रेट्स हैं, compassion, creativity, sensitivity, so much dedication, devotion, all Brahmanand sir has. So we have so much to share about Brahmanand sir. So I would just request everyone to clap for Brahmanand sir. And Brahmanand sir, you can say hello to all of us. Yay! Happy birthday! Yes, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Unmute Thank yourself. you. Thank you, everyone. Yes. Great. So thank you so much for sparing time. His birthday was on 3rd May, which is another very important day, क्योंकि I practice Buddhism and it's a very important day, 3rd May, and आज Mother's Day है, so दोनों days का बहुत relevance है. And Brahmanand sir, you hold a very special place in heart of music lovers. Thank you so much. And Shantana, she reserves the right to sing birthday song for anyone at Music Veranda. So it is now. Over to Shantana for the birthday song. Thank you so much, Anila, and a very happy birthday once again, Brahmanand sir. We love you so much, and this is my honor that I will sing a song for you, the birthday song, which on MV I sing birthday songs for everybody. Wow. So I just enjoy birthdays, or by God grace, I have given this opportunity to sing for all of you. And so here it goes. Fantastic. फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने तुझको ये पैगाम भेजा, वाहे खुदा करे ए शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए चांद की उम्र लग जाए,
आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रह्मा सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों हजारों साल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रह्मा सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। Wow, phenomenal. Thank you, Shantana. Thank you so Thank much. you, And thank you so much. Such a lovely soul, such lovely singing, such a beautiful smile, and may you always be blessed. Thank you. Thank you. thank you. So, sir, Brahmanand, sir, he needs no introduction, but we want कि आपका एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन पढ़ा जाए आज के दिन. And for this, I have requested Manu Kaushal. Manu Kaushal, because I wanted कि Manu Kaushal आपसे connect हूँ. Manu Kaushal, he is the pioneer of poetry chapter of Music Veranda. तो इन्होंने 2-3 मुशायरे किए हैं एंड आज हम लोगों ने एक दिल्ली वॉक किया रेड फोर्ट में. ही सो फुल ऑफ कंटेंट, शायरी, ही इज अ थिएटर पर्सन इन हिमसेल्फ. So Manu ji, I would request you to kindly read the introduction of Brahma sir. थैंक यू वेरी मच ब्रह्मा जी. सबसे पहले आपको जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो. और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ब्रह्मा जी की शख्सियत को बयां करने के काबिल समझा गया. ब्रह्मा जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की. वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की. Wow. Balanji is a very unique amalgam of charisma and creativity. A very humble human being who is grounded despite his accomplishments in different walks of life. He's a well-recognized filmmaker, we all understand, won multiple awards, a vastly published author, speaker, and a life coach. And we would love to take coaching from you, sir. He's a recipient of 2 National Film Awards and Rex Karamveer Chakra Gold Award 2019, a United Nations-driven honor in recognition of transforming lives through social impact projects and for creating ideas of hope. He is determined and passionate. I'll say for him कि मेरे जनों का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जनों का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा. Wow. He is best known for his film Jhalki, based on backdrop of bonded child trafficking and slavery. कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, feature documentary, a biopic on legendary ghazal master Jagjit Singh, and a national award winning biopic on R.D. Burman, Panchamda Unmixed. मुझे चलते जाना है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, इकरार. Sometimes मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, does not work for everyone. So was for Drupad singer Ashgari Bai. Brahmanandji brought her in life with his project Echoes of Silence, a project which is an epitome of compassion, sensitivity, courage, and human emotion. There's a film on rag pickers and many others which he has made and need no introduction. In his other projects, which include Surumai Sham, an international feature film, Rumi's Secret, Kindness series, Legacy series, documentary biopic, and many. Though mostly known as a passionate filmmaker, he has over 3,000 published articles, authored 3 books, contributed many chapters in international publications, and is most sought after for authored articles, talks,
webinars and workshops in areas of effective communication, caring leadership, integrated learning, and managing change. A man who is never contented is synonymous with Mr. Brahmanand. A poet, Ghulam Nabi Taba, actually said, "Justuju ho to safar khatm kahan hota hai? Justuju ho to safar khatm kahan hota hai? यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता." Wow. All his films, talks, writings, workshops explore spaces, worlds, and mindsets that make you think and see people in their life, success, failures, and life itself in a very different and inspirational way. He lives on a principle that Ghalib said, "कोई गर्द दिन जिंदगानी और है, हमने अपने दिल में ठानी और है." जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो ब्रह्मा जी, बहुत बहुत मुबारक. Thank you. क्या बात मनु जी, Thank thank you. you so much. You have added so much value. Thank you so much Manu ji for Thank you, this. ma'am. And yes, Brahma sir, आपका बर्थडे है, you're free to speak, talk, correct us whenever you feel like. Is there anything that you have to add to, or we can continue? Naini, please continue. Happy to see Gaurav here. Too. Hi Gaurav ji, welcome. Hi, hi, welcome to hi Sunil ji. everyone. Yeah, a lot of wonderful people have joined today. So now मनु जी ने बहुत सुंदर कहा ब्रह्मा सर के बारे में, तो मैं क्षितिज से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक गाना गा के ये बताए ब्रह्मा सर के पर्सोना के बारे में. यस क्षितिज, ओवर टू यू. एक राह हम रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई. हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. प्रणाम गुरुजी and very happy birthday to Brahmanand sir ji, और very good evening to all my Veranda family. आज मैं क्षितिज चुग, जयेश गुरु जी का शिष्य ब्रह्मानंद सर, आपको यही गीत आर.डी. बर्मन सर जी का, जिसको किशोर कुमार जी ने गाया है, बर्थडे के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में देना चाहूंगा आपको. आपकी परमिशन से स्टार्ट करूंगा सर. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई. हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना,
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. Thank Thank you. you. Thank you so much. Very nice. Thank you so Wow. much. And I would request everyone to please not use tracks क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है. And can I request गौरव शर्मा जी please to come forward? जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी because he was only capable. प्रभु राम का वर्णन सिर्फ वही कर सकते थे और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया because he was only capable. So I think Gaurav Sharma ji is only the right person to talk about Brahma sir because he's an ardent admirer, a great friend of Brahma sir. Gaurav Sharma ji, he has distinct persona. He is as mega as Brahmanand sir is, and he's an author and he's leader, an ardent admirer of R.D. Burman. So I invite you, Gaurav ji, to come and wish Brahma sir. थैंक यू अनिला. आपने जिस तरह से शुरू किया मुझे लगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है मेरे ऊपर. खुद तुलसीदास और कृष्ण की आपने बात की. वैसे बात आपने छेड़ी दी है तो तीन चीजें जो है जिंदगी में बदलनी नहीं चाहिए ज्यादा. उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करो तो खराब हो जाती हैं. एक आपकी बात, एक आपकी चाल और आपके बाल. वाह. ये जैसा है वैसा ही चलता रहे तो अच्छा रहता है. तो एक का और तो जिम्मेवारी मैंने ले लिया है, बाल का. एक की जिम्मेदारी और उसको हमेशा के लिए हमने ठीक कर दिया है, ब्रह्मा और मैंने. और पर ये बात मैं इसलिए कह भी रहा हूं क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी देखो किसी की बातों में, अपनी चाल में, अपने काम में, अपने ढंग में, दैट इज ब्रह्मानंद. आई थिंक इतनी प्यारी बातें मनु जी ने अभी की. मतलब एक एक फिल्म जिसका आप नाम लो, आप पहले ये देखिए ब्रह्मा के एक एक क्रिएशन का नाम क्या है. इतने छने हुए, इतने चुन चुन के ब्रह्मा ने नाम रखे हैं. और वो मतलब देख करके हैरानी होती है कि कैसे जब हम बुक आर डी बर्मन पे कर रहे थे मिलके ब्रह्मा और मैंने, तो ब्रह्मा ने नाम सूझा स्ट्रिंग्स ऑफ इटर्निटी. व्हाट अ नेम. मतलब एक संगीतकार जो स्ट्रिंग्स छेड़ रहा है फॉर इटर्निटी, राइट, स्ट्रिंग्स ऑफ इटर्निटी. फिर हमने एक और इलेबरेट बुक लिखी आर डी बर्मन पे और ब्रह्मा ने नाम चुना डायमंड्स एंड रस्ट. दैट इज व्हाट लाइफ इज. अगर आप कागज की कश्ती भी देखो या झलकी देखो, इतने प्यारे नाम है. राइडिंग ऑन अ सनबीम या थ्रू आवर आईज, जो हमने फिल्म देखी आईआईटी कानपुर के एक बैच के बारे में. और कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ इंजीनियर्स को पकड़ के एक ही बैच मतलब एक बैच, मतलब हम अब कई कई साल अपने बैचमेट से नहीं मिलते हैं, बट वो फिल्म आप एक बैच की फिल्म है. आप अगर 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के आईआईटीएंस को पकड़ो तो क्या बन सकता है. 1 साल के अंदर ब्रह्मानंद ने बना के दिया थे. वो बैच भी हैरान हो गया कि यार हमारे खुद के लोगों में इतने अचीवर्स हैं. तो ये जो चीजें देखने की एक नजर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी तो हर कोई जी के चला जाता है, लेकिन उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो छाप है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो लेयर्स हैं, उसको जिस तरह से ब्रह्मा निकालते हैं. आई मीन दिस रिमाइंड्स मी, जब हम जीते हैं तो इतने दुख, इतनी चीजें हम झेलते हैं. चार्ली चैपलिन ने एक कोट बोला था बहुत प्यारा, जो ब्रह्मा की हर फिल्म में आपको दिखेगा, हर फिल्म में. और चार्ली चैपलिन ने कहा था कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी व्हेन यू सी इट इन क्लोज अप, बट इट इज अ कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट. और अगर आप कितनी बखूबी, मतलब ब्रह्मा, यू विल बी सरप्राइज. अभी एक हफ्ता पहले कुछ लोगों को मैंने फिल्म के बारे में बताया. वन पर्सन ही टुक एन ऑफ फ्रॉम ऑफिस, उसने पूरी फिल्म देखी पंचमन में. इतने मतलब 2023 में उठ नहीं पा रहा है टीवी के सामने से इंसान. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रह्मा's वर्क, एंड वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. नॉट, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग और आई डोंट हैव टू क्रिएट, और मुझे कुछ चरित्र की एक रचना नहीं करनी पड़ेगी. ब्रह्मा के बारे में बातें नेचुरली निकल के आती हैं. तो मेरे ख्याल से
एक चीज और बस मैं यहाँ सबको बोलना चाहूंगा, क्योंकि बाद में कई लोग ये फेसबुक पे भी देखेंगे, कि फिल्म बनाना आजकल इतना कठिन नहीं है। वो सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी इतना इजी हो गया है, और इसलिए आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत गिरता जाएगा साल दर साल, और ये होता रहेगा क्योंकि मास बन जाएगा। ये एक बहुत सारा काम आने लगेगा, तो छना हुआ काम आपको ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा ने एक एक फिल्म जो बनाई है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऐसी कोई फिल्म पहले बनी हो। अगर आप बोलें कि माइकल जैक्सन पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, या एमी पे बनी है, या किसी और पे बनी है, आई एम सॉरी, फॉरगेट इट। पंचम अनमिक्स, कागज की कश्ती उन सबसे बढ़कर है। क्योंकि जहां हम बैठे हैं इस समय, आई मीन, मैं तो कहता हूं कि अमेरिकन फिल्म मेकर्स आर फॉर द वेस्ट एंड ब्रह्मा इज फॉर द रेस्ट। मतलब हमारी फिल्में, हमारे जो ब्रह्मा की फिल्में हैं, आप यूएस में चलाइए, यूरोप में चलाइए, ही इज द ओनली फिल्म मेकर आई नो जिसकी फिल्म्स नेटफ्लिक्स पे हैं, amazon प्राइम पे है, नेशनल ज्योग्राफिक पे है, इंडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पे है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप चलाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ही इज ट्रेवल टू ऑलमोस्ट, आई थिंक, मोर देन 50-60 फेस्टिवल्स, सो मेनी कंट्रीज। कौन है इतना बॉडी ऑफ वर्क लेकर के इस आर्ट फॉर्म में? और आज ब्रह्मा इज, यू नो, ही इज विद अस राइट नाउ, सिटिंग विद अस। आई थिंक व्हाइल वी आर congratulating and wishing him, I want everybody to know that there is no reference of this personality, you know, you आप ढूंढते जाओ, नहीं आपको मिलेगा कोई जिसकी डेप्थ इतनी है। मतलब एक एक फिल्म दूसरी फिल्म से अलग, और ऐसी अलग की मतलब, मैं आर डी बर्मन का फैन हूँ, पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मुझसे, मेरे लिए आर डी बर्मन से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन और इतने सालों के बाद, 7-8 मेरे ख्याल से साल के बाद, हमने जब कागज की कश्ती की, और उसका पूरा क्रेडिट ब्रह्मा के विजन पे जाता है, क्योंकि मैं कोर टीम को समझता हूँ वहां पे। ऑफ कोर्स तन्वी का रोल, पूरी टीम का रोल होता है, लेकिन जो ब्रह्मा का विजन था, जब फिल्म बन रही थी, शुरू हुई थी, तब हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन हुई ब्रह्मा और मेरी। मैंने सोचा नहीं था कि जो प्रोडक्ट बन के निकला, मतलब कागज की कश्ती जब मैंने देखा, आई वॉज विजिबली शेकन, आई वॉज मूव्ड। इट वॉज अ बेटर फिल्म देन द आर डी बर्मन। अपने ही काम को और आगे लेके जाना, एंड आई एम सेइंग एज एन आर डी बर्मन फैन। इसलिए मेरे पीछे स्टडी रूम में आज मैं बैठा, मैंने इस तरह से कैमरा रखा, फिर देखा कैसे घुमाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे पंचम अनमिक्स नहीं है, यहाँ कागज की कश्ती पड़ी है ऊपर। वो अलग बात है, पंचम अनमिक्स सेंटर टेबल पे है, बट you just look at the book rack right on the top. And I am an R.D. Burman fan, but this is the beauty. I have met Jagjit Singh 2-3 times, and I must tell I was not so impressed. But the personality was larger than life. His music was amazing. But जो ब्रह्मा ने फिल्म बनाई, and I could see Chitra ji in that screening. She was sitting there like a rock, stoic. And कोई भी फिल्म मेकर, आई डोंट नो, ब्रह्मा का जो कॉन्फिडेंस इतना प्यारा था उस समय, ही वाज लिविंग दैट मोमेंट सो ब्यूटीफुली। चित्रा जी जस्ट गॉट अप आफ्टर द स्क्रीनिंग, बीच में एक बार भी नहीं वो उठी, और पूरे पैक्ड ऑडियंस को वो पहली बार सबने देख पाए थे। दैट वाज द फर्स्ट स्क्रीनिंग एवर ऑफ कागज की कश्ती, प्राइवेट स्क्रीनिंग। एंड चित्रा सिंह केप्ट टेलिंग एवरीवन की व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड I think people living through a life cannot see their own film and say it's a beautiful film. ये बहुत कम होता है। इतने तो केस ही चलते हैं, आधी फिल्मों पे तो केस ही, अभी वो मनोज बाजपेयी की एक फिल्म पे केस चल रहा है, करेक्ट, जो वन मैन इज इनफ करके कोई एक फिल्म है। हर बायोपिक पे केस होता है, लेकिन the way, the beautifully that Brahma brought out that film, I think we can just go on and on. And thank you just for being Brahma. I think forget everything else. Thank you. Talking Thank to you you. is a delight. Thank Being you here, for it's a pleasure. thank you for the wonderful things you said, and सुनने में तो अच्छा लगता ही है, but कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो which I have not heard before and not even thought before, so that becomes very insightful, very triggering off to certain kinds of thoughts which you don't know in what direction it will go, and maybe result in something
some other exciting thing. So yes, गौरव का तो गौरव और हमारा तो दोस्ती शुरू हुई आर.डी. बर्मन के फिल्म से, बट आई थिंक कुछ एक जो मैंने 2 जन को क्रेडिट दिया था when the film ends. One was I thanked my father on one plate of the film for you know, making me aware of the vagaries of life and music both. And the second plate was for Gaurav, and that full plate said, I don't remember the words, but it said that for an abiding friendship during and beyond Panchaman Mix. And I think it largely stands true till today after so many years. By the way, Gaurav, ये 15वां साल होने वाला है पंचमन मिक्स को. सही बात है. 2008, you know. And I have only felt fortunate to have a friend like Gaurav, and for various reasons, and I think मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखता हूँ क्योंकि गौरव के बर्थडे के दिन वो सब बातें करेंगे, है ना. मगर the kind of insights, getting charged up, learning, a sense of sharing that I have with Gaurav is remarkable. And again, thank you for being there. As far as the creations are concerned, some of them which have turned out to be good, I am, and it's not just humility. I feel that I genuinely feel that I'm fortunate to being the instrument through which that creation got made. कोई और भी हो सकता है बना लेता, कोई हो सकता है और भी अच्छी फिल्म बनाता उससे. There is, मगर जो फिल्म बन गई एक खास तरीके से बनी और थोड़ा बहुत सोचा मगर बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं, एंड बन गई. और the most important thing is लोगों को अच्छी लगी और फिल्म अभी भी देखी जा रही है. लोग I met Amish 2 days back for something else at in a short meeting, and he had seen the film and he said that and he said that, man, you're a master storyteller. And I said, look who's saying that, you know, because Amish has some 10-11 books which has sold 60 million copies and things like that. So I said, look who's saying that. And I said that, well, if you're saying so, then it has a double, you know, impact thing. And I think that and he could remember, you know, things like what Javed Akhtar had said about time being kind to great people, things like that. So ये सब चीजें घर कर जाती है, रह जाती है लोगों के दिमाग में. And I think that is probably one of the success components of these films, that people remember, and people remember for a good reason. They remember because it resonates. I think it resonates. They feel like that. कैसे क्या वो एक अलग बात है, मगर thank you very much, Gaurav, and everyone who's saying wonderful things. आज तो बर्थडे है तो ये सब तो सुनने में अच्छा लगता ही है. अरे अभी तो अमरीश भाई भी आ गए हैं, and again all dear people. Yes, very happy birthday to you. thank you Amrish. मैं बहुत देर तो नहीं हो गई मुझे, I hope. नहीं, बेशी नहीं, never. आप हमेशा टाइम से ही आते हैं. नहीं एक्चुअली जहाँ बैठ जाओ वहीं से टाइम शुरू हो जाती है, जहाँ पे खड़े हो जाओ वहां से लाइन शुरू हो जाती है. आपका बर्थडे तो कौन नहीं आना चाहेगा, इट्स अ प्रिविलेज. दरअसल एक कल प्रोग्राम है तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी दूसरे रूम में, मैं इधर आया हूँ, कलाकार लोग उधर बैठे हैं. तो एक हम कोई पुराने गाने गजलों का प्रोग्राम है कल, तो मुझे लगा उसका एक शेर मैं आपकी नजर करना चाहूंगा. बिल्कुल. वो खुश नसीब है जिसको
तू इंतखाब करे। जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए इंतखाब यानी सिलेक्शन। तो जो ब्रह्मानंद जी की लिस्ट में है, हम लोग गुड बुक्स में हैं, हम खुशनसीब हैं। वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, है जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू आए। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो, और तू आए। दिल्ली खुदा करे के कयामत ना हो फिर भी दिल्ली है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ब्रह्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब लोग कहते हैं कि ये इंग्लिश बर्थडे विश नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक इंडियन प्योर हिंदू या हिंदी वर्जन भी बनाया है, तो वो लोग नाराज हो उनके लिए, ना हो उनके लिए। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रह्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रह्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय नमस्ते। जय हो, जय हो। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। अमरीश जी जैसे जगजीत सिंह साहब ह्यूमर, इमोशन, सेंटिमेंट सब भर देते थे, वैसे ही आपने 5 मिनट में सारे फ्लेवर्स दे दिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच। यस रमा सर, एम आई राइट ऑन दैट? या वही लेनी है जय जी, वही। Yes. हाँ, वही चला आ रहा है। अब उन्हीं का है। Thank you, Amrish ji. Thank you so much for joining. बाकी ब्रह्मा जी के कोई विश करने के एक्साइटमेंट में बाकी सबको नमस्ते करना भूल गया। जितने भी यहाँ लोग हैं सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, Hello. सत श्री अकाल। गौरव जी नमस्ते, सुनील जी नमस्ते, गौरव शर्मा, दोनों गौरव जी को नमस्ते, और मुकेश जी, और मुझे सब लोग दिख नहीं रहे हैं। सो ब्रह्मा जी बहुत अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टाइम दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल में थे उसके बाद। अमरीश जी जब हम लोग रौनक के शाम कर रहे थे, तो I was having a call with अमरीश जी, and I happened to tell him कि ब्रह्मानंद जी भी कनेक्टेड है हम लोगों से, तो सडनली सेड रुकिया, और उन्होंने अपना कैमरा टर्न किया, पीछे पूरा आपके पोस्टर्स लगे हुए थे। I said, oh my God. So that's all. मैं ब्रह्मानंद सर के ऑफिस में गया था बॉम्बे में, तो वहां पे बहुत एंट्री पे ही बहुत बड़ा कागज की कश्ती का पोस्टर था, तो वहां पे मैंने इनके साथ फोटो खिंचवाई, और अलग अलग जगह अंदर भी ऑफिस में। तो वो मतलब दुनिया बहुत छोटी है, ये तो खैर है ही। इस बरामदा में हम आके फिर से मिले, जबकि राबता। थैंक यू सो मच। और अब मैं दिवाकर से रिक्वेस्ट करूंगी, दिवाकर ही इज बीइंग वांटिंग टू विश ब्रह्मा सर, ही इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रह्मा सर एंड ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू हैव योर ब्लेसिंग्स सर। सो दिवाकर, ओवर टू दिवाकर। थैंक यू सो मच अनिला मैम। प्रणाम ब्रह्मा सर, एंड विश यू हैप्पी बर्थडे। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं जितना बोलूँ उतना कम है, कि आप मेरे इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि जो काम आपने दिखाया है एज ए म्यूजिक इंडस्ट्री और मूवीज इंडस्ट्री में, तो वो रिमार्केबल है, और वो दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। भी जितनी रिसर्च और चीज़ें आप लोगों ने उसमें लगाई हैं, वो बहुत अल्टीमेट चीज़ें हैं। तो मैं क्या ही दूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी एक गजल नजर कर रहा हूँ आपको, आपके इस खास दिन पे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को प्रणाम। मेहंदी हसन साहब की बिल्कुल आएगी, प्री कंफर्म्ड है।
हाँ जी, जी। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। मेरे गुरु जी को प्रणाम और गौरव शर्मा सर, गौरव जैन सर, सभी को प्रणाम। तो सो थैंक मेहंदी यू, हसन साहब का थैंक यू फॉर सिंगिंग। सो मैं कहीं अभी पढ़ रहा था कि जब थैंक यू कोई गाना गाता है या इंटरव्यू होता है या कोई भी काम हो रहा है, अगर थैंक यू उसके बाद आता है तो इट्स कॉल्ड कर्टसी। ठीक है, इट्स आउट ऑफ कर्टसी। अगर थैंक यू बीच में आता है तो इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ओके, और थैंक यू अगर पहले आ जाता है तो इट्स कॉल्ड फेथ, वाह, है ना। क्या बात। तो मेरा फेथ तो दिवाकर में इतना है कि थैंक यू मैं 200 साल पहले कह दूं। चलो, यस, कंटिन्यू, सॉरी। बहुत बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। मेहंदी हसन साहब की गजल है हम्म, दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई, इस हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई, इस हुस्न की रानाया, पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, वाह, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो वाह। गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। इसी में 2 लाइन ऐड ऑन करना चाहूंगा। जगजीत सिंह जी की एक बहुत खूबसूरत गजल है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, वाह, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार वाह, है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत वाह, बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ब्रह्मा सर। थैंक यू। ब्रह्मा सर, मैं एक दिवाकर का एक बताना चाहती हूँ कि इसने कैफे के बाहर हनुमान चालीसा गाई कुछ बच्चों के साथ, और हाँ, वो इतना वायरल हो गया कि वो विदेशी न्यूज में उसके बारे में बताया जा रहा था। और आई डोंट नो कितने, दिवाकर कुछ बताओगे इस बारे में? सारे सोशल मीडियाज को मिला के उस पे ब्रह्मा सर आप लोगों के आशीर्वाद से करीबन 1 बिलियन रीच आई है उस पे। माय गॉडनेस, 1 बिलियन रीच। 1 बिलियन, यस। और रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के न्यूज चैनल्स पे भी वो चल रहा है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में हमारी वो वीडियो वायरल हुई। वाह, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। सो आप लोगों के आशीर्वाद से ये वो चीजें हुई। शेयर कीजिएगा नीला जी, वो बीकानेर वाले ग्रुप पे। श्योर हाँ श्योर। हाँ, लिंक शेयर करो। नीला एंड जी, इट इज सिंपल, बच्चे लोग, ये कुछ यंगस्टर्स बैठ के हनुमान चालीसा गा रहे हैं चाय के कैफे के बाहर। वाह, इतना सुंदर एक्चुअली वीडियो है। एक्चुअली ब्रह्मा सर, मेरा थॉट था कि मतलब जैसे
जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं अभी लुप्त होती जा रही थी। लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में बिलीव कर रहे थे, और जो हमारा सनातन धर्म है, जो एक हमारी जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही थी धीरे धीरे। तो हमारा ये था कि कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है वो चीज दोबारा से। वाह। तो फिर हमने वो दिमाग में आया, जहन में आया कि अगर हम आर्टिस्ट हैं और हम बाकी दिन तो बॉलीवुड और ये सब गा ही रहे हैं, तो एक मंगलवार का दिन हम चुन लेते हैं जो सिर्फ भगवान को समर्पित हो, जो हमारे मतलब सुप्रीम्स को समर्पित हो। तो वही वहीं से वो थॉट आया, और फिर हमने जब गाया तो हमारा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि वायरल होगा या कुछ भी होगा, बट वो किसी ने वीडियो बनाई, हमने डाली, वायरल हो गई। क्योंकि हनुमान जी का साथ था उसमें, हनुमान जी का उसमें। थैंक यू दिवाकर। और अब हम मुकेश के पास चलते हैं। सो जस्ट सर, एवरीबॉडी वांट्स टू विश यू, मधु प्लीज। Once again, I wish you very happy birthday, sir, and थैंक यू। live long with us. हम सब साथ रहे थी दुनिया तक। और मैं सब इतनी ऊंची ऊंची चीजें आपको सुना चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। मधु मुकेश जी, मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए, 2 मिनट दे सकते हैं क्या? हाँ, why not? Of course. Actually, Tanvi has joined और she was very busy, पर वो बोली मैं उनके यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, so she's just joined to wish Brahma sir. No problem. I would just like to interrupt मधु मुकेश जी, और मैं तन्वी को इनवाइट करूंगी। तन्वी, आप नहीं आते तो ये प्रोग्राम अधूरा रह जाता है ना। और क्योंकि हनुमान चालीसा रामायण की बात चली है, तो ब्रह्मा सर की टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हनुमान के बिना तो कुछ पूर्ण ही नहीं है। तो तन्वी इज हनुमान इन दैट इज व्हाट ब्रह्मा सर ऑलवेज सेज। सो ओवर टू यू तन्वी। Hello. Thank you so much, Anila. Hello. Happy birthday, Brahma sir. Thank you, and yes. And so nice to see everyone today after so long. Thank you, Tanvi. Tanvi, Hello. अमरीश जी भी है। Tanvi, quickly, I just want to understand Brahma sir as a leader. If you can elaborate on that part. Okay. So leader तो क्या ही बोलूं, मेरे तो डायरेक्ट गुरु हैं। And I think he has a very what to say. This is वो डरिए मत तन्वी जी, खुल के बोले, डरिए मत। जहाँ रोज का काम करना है साथ में, वहां तो प्रॉब्लम हो सकती है। No, but he is a fantastic leader, and I really look up to him. And I don't I totally I think whatever that I am today, it's mostly all credited to Brahma sir and whatever that I've learned with him. And I think a few of the key things that I feel that I've have actually learned from him and seen him. जो भी आपके साथ काम करते हैं उनको प्यार करना, actually प्यार करना with each and every one, from the smallest in the thing to the so that प्यार करना लोगों को, and when the leader loves you and each one of the people who work with him know that he loves you, so it's automatically you get aligned. So I think that's a beautiful way of aligning people together that he does. Then there are so many things. ऐसे एक साथ पूछने में भी दिमाग में and yes, and also being so lenient most of the times, where everybody does whatever they're doing. He doesn't get into the smaller choti cheezein, and I think always looking at the bigger picture, always looking at the long term. And a few things that he doesn't like is people leaving, I think. उनको किसी को भी मना करना, किसी को भी ना बोलना is yes.
हम लोग भी जब भी बुलाते हैं, I don't know how he manages, but he never says no to us, that this is something very very wonderful. और ब्रह्मा सर, आपको वही तन्वी ने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि आप कोशिश करते कि कोई भी इनविटेशन को आप नो ना बोले, वो कितनी बड़ी बात है. It's such a big thing. That's true. I can give a testimony on that. तो मेरा एक बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, टाइम एंड अगेन एक जगह है लोखंडवाला के पास में, और वहाँ पे मैंने इनको कहा कि मैं उधर वहाँ आ रहा हूँ, आप आएंगे. मतलब सो ग्रेसफुल ऑफ हिम, ही जस्ट वॉक्ड टू दैट प्लेस. उन्होंने कहा मेरा ऑफिस इतना पास है, और आ गए. फिर एक और ट्रिप में मैं बॉम्बे में अपने घर पे था, फ्लैट पे, तो देन अगेन आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज सो अगेन तन्वी जी और सो काइंड इनफ टू ड्रॉप इन. और मेरा वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, जैसा भी मैं चाय वाय बना के इनको पिलाने की कोशिश कर रहा था. सो ये बात तो सच है. और ये मैं भी बीच में बोल रहा हूँ कि ही इज वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन. मतलब आज के ज़माने में ना ऐसे लोग मिल जाए तो मन नहीं करता कि बस पकड़े रखो, इनका दामन छोड़ना नहीं है. एक सच्चाई जो होती है इंसान में, वो इनकी है. इसमें बहुत जेन्युइन इंसान है. हमें मतलब दिली लगाव हो जाता है इनसे मिलते ही. जो भी मिलता है, जो भी इनके टच में आया है, ही कैन से दैट. यस ब्रह्मा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, आज तो मेरा टर्न है खूबसूरत बातें सुनने के की तो हाँ, मगर मैं वही कहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ तो उसमें 4 जगह जहाँ जा पाता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं. अगर 4 और जगह है जो नहीं जा पाता हूँ तो शायद माइंड नहीं करते भी हो सकता है कोई माइंड भी करते हो, मगर मेरी कोशिश रहती है कि मतलब I will sometimes I miss out on something to be there, and I don't consider it missing out. I consider it in the flow of things. So I think like that, and I feel good, and I feel good when others feel good. So I think kahin na kahin I draw energy from people. I draw energy from love. So it goes on building like that. Absolutely. This is so beautiful. Thank you, Tanvi. Thank you so much for taking out time. ये प्रोग्राम actually एक complete रह जाता आपके बिना. No, absolutely. A ritual, and Yes, and thank you so much. Thank you. And have a great time, sir. Enjoy the. Thank you. Thank you. Yes, Thank- and I thank shall you. see the live record on Facebook later. Yes. Yes. And we love your smile. Keep smiling. ठीक है जी. Thank So, you. carry on with your मधुमुकेश जी yes. को, yes, मधुमुकेश जी को मैंने इंटरप्ट किया था, तो अब मैं कुछ उनके लिए अच्छी बातें बोलूंगी, उसके बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी गाने गाने के. मधुमुकेश जी इंदौर से हैं, इंदौर नगरी से, और बहुत सुंदर गाते हैं. पहले मुकेश को गाते थे, लेकिन सारे सिंगर्स गाते हैं, बहुत प्यार से गाते हैं. ही इज सच अ सिंपल पर्सन. एंड ओड मधुमुकेश जी, और वरांडा को बहुत प्यार करता है. यस, थैंक यू. मुझे उनका नाम बताइए जो वरांडा को प्यार नहीं करता है. तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की. और मैं कुछ एक गजल का एक शेर पढ़ करके और आपको गजल सुनाऊंगा, छोटी सी एक. हालांकि अनिला जी ने मुझे किशोर जी का गाना बताया था अमर प्रेम का, पर मैं उसके पहले आपको सुनाता, फिर अगर मौका मिला था बाद में सुना. मज़ारे तस पर जब रूह है लैला एक दिन आई, तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई. लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन, मगर आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब. आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब.
आहिस्ता आहिस्ता हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। मैंने मधु मुकेश जी को रिक्वेस्ट किया, जीजे ने आपको एक डिकोड भेजा था, वो मैं जीजे को बोलूंगी वापस वो डिकोड पढ़े, और ब्रह्मा सर को बहुत अच्छा लगा था वो डिकोड जीजे वाला। तो उसमें पहला था बोल्ड ना, तो हमने सोचा था हम उन्हीं से गाने गाएंगे और ब्रह्मा सर पे जो सूट करते हैं, लेकिन मैंने देखा सबने अपने अपने गाने बदल दिए। तो जो बोल्ड हमने सोचा था वो सोचा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मधु के बाद में सुना देंगे। एनीवे, तो थैंक यू जीजे, वो आप डिकोड पढ़ दीजिएगा। और ब्रह्मा सर, मेरा एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे आजकल ड्रामा वाली फिल्म्स बनती हैं, यू नो, लेकिन द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू मेक, यू हैव टू बी वेरी करेक्ट, यू आर मेकिंग ऑन वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स। तो व्हाई डू, हाउ कम you select these subjects only? मतलब वो ड्रामा वाली फिल्म्स आप नहीं सेलेक्ट करते हैं, and you select these films to, these subjects to make them as well. I suppose मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती है कि you know कि थोड़ी सी I have nothing against fun, entertainment, laughter, वो सब सही है और अच्छा है और होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ और कुछ होने की जरूरत है। तो आई थिंक वही उसी को लेकर के, इसीलिए like even when I try and make films, it has, I try to retain a lot of lightness, I try to retain a lot of humor, I try to retain a lot of these things because they are part of that, and probably they also fit in somewhere in the entertainment. Khali entertainment is not of the completely the David Dhawan kind of slapstick or something, and it's of a slightly different kind. So मैं वही समझता हूँ कि हर कोई अपना अपना वो identity चुन लेता है in terms of the subjects and the style that you resonate with, and if it works तो फिर अच्छी बात है, if it doesn't work तो फिर you have to find ways in which you can make it work. You don't have to change yourself, you have to find ways in which you make what you decide to do work. And if it doesn't work तो कम से कम एक आदमी को तो फिल्म अच्छी लगनी चाहिए, that is you at least, you know, so when you make it, तो बस वही है। I think nothing much, कभी ज्यादा सोचा नहीं, जो अच्छा लगा उसके ऊपर थोड़ा सा सोच करके, मैं सोच और डूइंग में 30-70 का रेशियो जनरली रखना चाहता हूँ। I feel that if you don't think at all and you start doing something, that's also not correct, but if you keep thinking only and don't do it, so अगर 90 और 10 का रेशियो हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं होता है। And I've myself been a victim of that many times. बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इतना सोचा है, इतना सोचा है, इतना सोचा है कि कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। तो I realize at the end of it all कि maybe उतना सोचने की जरूरत नहीं थी। So I think I have arrived at a understanding कि 25-30-40% तक सोचो और उसके बाद फिर एक्शन में घुसो, करो, do. I think that makes it different. Very well said. I mean, एक वो कहते हैं ना perfectionist paralysis हो जाता है, नहीं तो हाँ मेरे साथ भी, मैं तो खुद I can relate to it. मैं उससे ग्रस्त। हाँ, so management term है analysis paralysis, okay,
और हिंदी फिल्म डायलॉग है कि सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो बात एक ही है। हाँ, ब्रह्मा सर, इन्होंने अभी अनिला जी आपने जो कहा कि ड्रामा भी मतलब उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज में ज़्यादा इनका विशेष वो दखल है, लेकिन इनकी वो फिल्म्स भी हैं और हमें तो एक फिल्म का इंतज़ार है बहुत ज़्यादा, कभी ना कभी बनाएंगे तो यही बनाएंगे वो। ये इनकी स्माइल बता रही है कि समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जो जिन पर इन्होंने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अगर फीचर फिल्म बनेगी तो यही बना पाएंगे, बायोपिक जिसे कहते हैं, तो कभी ना कभी ज़रूर बनेगी और यही बनाएंगे। और बड़ी इंसिडेंट ही मैं यहाँ पर सब लोगों को हजरात को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हैं मजाज, इसके पीछे एक कारण है सर। मैं ब्रह्मानंद जी की कास्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने एक फिल्म में काम किया है जो राइट रेखता ने बनाई है, जो जश्न रेखता करते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने एक प्रोडक्शन किया है, एक शायर थे असरार उल हक मजाज, तो उन पर एक फिल्म बनी है, रेखता ने बनाई है। तो उसमें लकीली जो मजाज का किरदार है, लीड रोल है, वो मुझे ही मिला और मैं उसे निभाया है। और वो फिल्म कल लंदन में एक यूके एशियन यूके फिल्म फेस्टिवल कुछ होता है, वहाँ पर मिस्टर सर्राफ और ये जो रेखता टीम है गए हुए हैं, और शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब के हाथ में इसका कुछ रिलीज हुआ है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब के मामा थे मजाज। सो देखते हैं क्या होता है। मैंने तो जो भी उसमें रोल किया है ब्रह्मा जी, वो बस एक बार भी इतना वक्त नहीं होता था कि जाके उसको देख लें कि मैंने क्या किया। मुझे वो कहते बस हो गया आगे चलो। तो एक तो उर्दू के लफ्ज और पहली बार जिंदगी में एक्टिंग, और उसमें भी इतना भागते भागते गुरिल्ला शॉट्स थे, क्योंकि पीरियड फिल्म थी 1940-50 की और कोरोना के दौरान शूट किया, तो कोई परमिशन नहीं थी, बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पर हमने इसमें काम किया। देखते हैं क्या निकलेगा। तो हम कहाँ देख सकते हैं ये? सर मुझे खुद अभी नहीं मालूम, कल रिलीज हुआ है, किया इन्होंने, ट्रेलर्स तो आए हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुद बेताब हूँ उसको देखने के लिए। शूट के बाद अब तक देखा नहीं, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया, ऑल द बेस्ट अमरीश। कांग्रेचुलेशंस। और मैं एक लाइन यही ऐड करूंगा कि म्यूजिक की दुनिया का जो फायदा हुआ वो एक्टिंग की दुनिया का नुकसान हुआ, बिकॉज ऑफ योर फोकस, बिकॉज सच ए हैंडसम गुड लुकिंग, एंड अगर एक्टिंग की कैपेबिलिटी है तो बहुत पहले उधर हो जाना चाहिए था, और मौका नहीं मिला सर। यस। चलिए अब उम्मीद है कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा जी। एक शायरों का रोल तो कर ही सकता हूँ, बंद गला शेरवानी पहन के। यस, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत अच्छा। गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? गौरव जी ये कह रहा था कि इतने प्यारे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक अमरीश जी से अच्छा तो शायद ही कोई इस चीज के लिए चुना जा सकता था। कारण ये भी है कि आई थिंक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, आई थिंक मजाज साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बड़ी पेचीदा थी, उनकी शायरी की तरह। किस्सा मुझे याद आया, उन्हें कश्मीर बुलाया गया एक मुशायरे में, और जब वो स्टेज पे पहुंचे माइक पे, तो लोगों ने बोला कि आपको कश्मीर खूबसूरत लगा नहीं लगा, कुछ बताइए तो सही, इतनी प्यारी जगह है। तो उन्होंने स्टेज पे एक लाइन बोली कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बीच में कुछ पहाड़ आ गए हैं। साहब ने एक जगह सुनाया था, उनके मामा है। बट मेनी कांग्रेट्स आई थिंक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीमियर। आई थिंक ऑल सक्सेस टू यू अमरीश जी। बिल्कुल। I think this year birthday celebration ritual is a very good thing. We get to know so much about each other, what's happening. Absolutely. I would like to acknowledge Sunil Sharma ji. Sunil Sharma ji is a very big music lover. काफी काम कर रहे हैं दिल्ली में ये in the field of music, and it's really nice that he's part of us. Hello Sunil ji, welcome. Most welcome. बहुत अच्छा गाते भी हैं, हमें समय मिलेगा तो हम इन्हें invite भी करेंगे। So can I invite रूबी जी? काफी देर से इंतजार कर रही है रूबी जी, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ हम एक अंतरा गाएं। I can also see Tushar Bhatia. Yes. Hello, Tushar sir. Good evening. Good to see you, Tushar. Yes. Good evening. Thank you for inviting me, Anila, and the most happy birthday to my dearest Brahmanand Singh. It's so wonderful to be a part of this gathering, and Brahmanand, as you all know, is very, very dear to me. We have worked a lot together, and hopefully we work more, inshallah, as they say. And that is never enough. I don't think we ever have enough of each other. When we meet, it's like
grab the moment and make the most. There's so much to discuss and there's so much to share. More than discuss, share, and it's it's true. I think Gaurav will agree. He's gone. Gaurav is gone. No, he's there. Because he's I'm so here. beautifully Gaurav put, Sharma. Majaz Saab. You will agree कि हम जब कुछ अच्छा पढ़ते हैं या अच्छा सुनते हैं या कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, कोई अच्छी पेंटिंग देखते हैं, तो उसका जो आनंद होता है वो शेयर करने से दुगना तिगना चौगना होता है, और वो बिना शेयर किए मजा नहीं आता। मेरी एक ये चीज है ब्रह्मानंद कि कभी कोई फिल्म देख ली ना, ऑब्वियसली फिल्म अगर बहुत अफेक्ट कर गई अपने को, और कैसी भी स्टूपिड फिल्म भी हो या अच्छी फिल्म या जो भी हो, वो जब तक किसी से डिस्कस नहीं करते लेना, उसके शॉट्स, उसकी टेकिंग, उसका डायरेक्शन, उसके एडिट, उसका बैकग्राउंड स्कोर, अगर गाने हैं तो गाने, तब तक चैन नहीं पड़ता। मतलब एक होता है कि भाई मुझे ये मैंने ये फील किया, मैंने ये महसूस किया। आई मीन एकदम स्टूपिड से स्टूपिड फिल्म भी हो तो भी वो डिस्कशन से बहुत उसका मजा आता है। और एक बहुत फनी एनेक्डोट बताना चाहता हूँ ब्रह्मानंद। दिस इज लाइक व्हेन वी वर टीनेजर्स, वो नए नए VHS आए थे, टीनेजर्स वह उसके बाद की बात है। तो माय सिस्टर वृंदा वाज कंप्लीटली इनटू सिनेमा, और हम लोग भी टोटली, आई वाज इनटू सिनेमा आल्सो, बट मोर इनटू बैकग्राउंड स्कोर्स एंड शायरी एंड म्यूजिक एंड ये, और कैसे कहाँ फिट हुआ म्यूजिक का, कौन सा पीस कैसे आया, और सलील दा, नौशाद साहब, ये सब। और वो कुछ सिनेमा का कोर्स करके आई थी पूना से, तो उसकी जो नजरिया था बड़ा टेक्निकली वो एक्सप्लेन करती थी कि ऐसा है वैसा है। तो इंगमार बर्गमैन का एक फेस्टिवल, मतलब फिल्म की फेस्टिवल थी ऑल इंडिया रेडियो के जो ऑडिटोरियम पे, उसमें इंगमार बर्गमैन की कुछ फिल्में थी, और बर्गमैन she just went on about it, you all must come, you all must see. As it turned out, I don't recall the film, it was a horrible film, as in horrible as in, I hope you're not going to put this on the video, Anila, on the net. You are already on. No, it's live, but it's not archived. Okay. Yes. Tell me, is it going to be like that? Then I'll just censor my words. No, go ahead and say. हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। It's already live. Anyway, so there were scenes which were very. She can beep it. No. So there were scenes which were not just shocking, they were disturbing. All right. And I won't give you the details of the scenes since we are live, but so we were like 15 of us who had gone for the film, all cousins, and we ragged her, like kaisi film mein leke gayi, kaisi, you all don't understand, you don't understand cinema, wo abhi aayi hai Pune se na, to you all don't understand cinema. So my brother, yeah, you have to see between the frames. और वो ऐसे, मतलब इस तरह से जो डिस्कशंस होते हैं कभी भी फिल्म के बारे में, आई मीन तो वो सारा जो एक जकीरा होता है अपने अंदर, एकदम एक्साइटमेंट का भी, या मतलब ऑफ कोर्स आई शेयर अ लॉट ऑफ माय एक्साइटमेंट in my lecture demonstrations with the students when I do cinema workshops and especially background scores etc. तो वो मैं मेरा सारा जो मेरे फेवरेट सीन्स हैं, बिमल रॉय हो या गुरुदत्त साहब हो या कोई भी हो फिल्म हो, मतलब जिसमें हमें कुछ मिलता है, मटेरियल मिलता है समझाने के लिए, या तो हमने एंजॉय किया हुआ, तो वो सब हम शेयर करते हैं। लेकिन जब मैं ब्रह्मानंद को मिलता हूँ या ब्रह्मानंद की जैसे और भी मेरे जो फिल्म मेकिंग फ्रेंड्स है, जैसे नहीं हर अपनी जगह पे इंडिविजुअली है, लेकिन व्हेन आई से दैट आई मीन फिल्म मेकर फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ एक्साइटमेंट होता है, शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है, और इट इज नेवर एंडिंग, है कि नहीं ब्रह्मा? बिल्कुल। एंड विद तुषार मेरा फ्रेंडशिप इक्वेशन एज फॉर म्यूजिक है कि मैं कहीं ना कहीं उसको छेड़ देता हूँ, कोई ऐसी अनसुनी मतलब some kind of an observation about music which and I go a lot to my
father, grandfather, what I would hear or observe or something, और वो मैं छेड़ देता हूँ. And then comes, a cataract, waterfall from Tushar, और वो चलता है, वो 20 मिनट चलता है, 1 घंटा चलता है, और मेरा काम फिर होता है सुनने का, और मैं सुनता हूँ. And I can't tell you, after every half an hour, 1 hour, I am richer by at least 10 things that I hear from Tushar, at least, which I have not heard before, in spite of a decent bit of understanding or exposure on music, because kahin na kahin se he has so much inside him. And I think that's an equation, that see, एक जरूरी होता है, you need to learn how to talk so that others listen, and listen so that others talk. दोनों ही जरूरी होता है. And I think that I practice that with Tushar the other way. That is, I listen so that he talks. That's not being fair to me, because I also want to listen to what you have to say. No, you do. बीच में मैं वो surface up होता है, and he's very, very excited to hear those insights. But as far as music is concerned, he's a deep ocean. और उससे जितना भी हम बात कर रहे थे, probably we are probably the last generation of this kind of musical understanding or exposure. ऐसा नहीं है कि म्यूजिक खत्म हो जाएगा या म्यूजिक के बारे में, बस इस तरीके का जो एक एक्सपोजर है ना, वो बहुत कम होता जा रहा है. And I think Tushar is one of the big ones around. Thank you. कभी मौका लगे, जिस किसी को भी मौका लगे, म्यूजिक वेरांडा को मौका लगे, तो just tap into his reservoir. It's mind blowing. मैं लास्ट आपके बर्थडे के दिन इनसे मुलाकात हुई थी, और मैंने सोचा मेरी डायरेक्ट लिस्ट में है जिस दिन भी मैं मुंबई जाऊंगा नेक्स्ट, तो इनसे मुझे मिलना, लेकिन मैं जरूर आइए. आ ही नहीं सका मैं बदकिस्मती से भी. In fact, I would love to meet Gaurav also. He spoke so beautifully about Majaz Saab. And are you based in Bombay? Bangalore. I'm in Bangalore, but Bangalore and Amrish, Delhi. Yeah. I live in Delhi. I think हम लोग की एक बैठक होनी चाहिए. एक इसमें इसी मौजू पे जो ब्रह्मानंद ने अभी फरमाया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि for me, filmmakers are my favorite people, because उसमें सारे आर्ट समाये हुए हैं. Yes. उसमें म्यूजिक है, उसमें सिनेमाटोग्राफी है, उसमें पोएट्री है, उसमें स्क्रीन प्ले है, उसमें डायलॉग्स है, उसमें आर्ट डायरेक्शन है, उसमें एक्टिंग है, उसमें क्या क्या है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सब कुछ है. फुल कंप्लीट पैकेज है वो. फिल्म मेकिंग इज अ कंप्लीट पैकेज. सो एनी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर इज अ fully aware of all the, he's like a general practitioner, and we are like specialists in small departments. और तो general practitioner को I would just like to share Brahmanand sir का ही मैं कुछ आज वीडियो देख रही थी. So this is his writing only. I look inside for personal awakening and look outside for dreaming in the form of cinema, poetry and stories. So I found it so wonderful. मैंने उसका screenshot ले लिया था. Beautiful. Very nice, beautiful. So I would just request Ruby ji, she's waiting for a long time. She wants to wish Brahma sir. Can I request her, please? Yes. Hello, good evening to all. Happy birthday, many happy returns of the day, Brahmanand sir. Thank you, Ruby. सबको नमस्कार, तुषार सर, अमरीश जी, बहुत अच्छा लगा. इतने बड़े जो गौरव सर और बैरन का जितने लोग हैं, सबको नमस्कार. तो आज मैं सलील चौधरी जी का एक गाना गा रही हूँ. और Brahma sir, you can request her. कोई आपको कोई special गाना सुनना है. She can sing Bengali song also. Okay, she specializes in Rabindra Sangeet. Yes. Okay, इतने बढ़िया गाना सब गा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है. हाँ. रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की
मेरे अनुरागी मन में अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में रजनी गंधा फूल तुम्हारे के यूं ही जीवन में, हर पल मेरी आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बन के बरसों के जीवन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे के यूं ही जीवन में, ओ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके ही जीवन में। थैंक यू। Thank you, thank you. Thank It you, was thank beautiful. you. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। ये ब्रह्मा, अनिला अगर आप इजाजत दें तो, ब्रह्मा ने जब तुषार साहब के लिए बोला कि डेप्थ आजकल जो पॉसिबली द लास्ट जनरेशन विच इज गोइंग सो डीप, आई थिंक मुझे ये बात पे याद आ गई कि हम लोग वी आर ऑल टॉट नाउ डेज टू सर्फ द इंटरनेट। सर्फिंग सिखाई जाती, कोई डुबकी मारना नहीं सिखाता है। तो मेरे ख्याल से दिस फोरम इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज आई थिंक म्यूजिक वरांडा जिस तरह से लोगों को जोड़ रहा है, लोगों की डेप्थ एक टॉपिक पे, वो अंडरस्टैंडिंग, और कोई ये वीडियोस देखे तो वो काफी हद तक बिल्ड भी कर पाए, क्यूरियोसिटी भी बिल्ड हो, खुद अपनी रिसर्च भी करें। मेरे ख्याल से हर चीज के इतने पहलू, इतने डायमेंशन है। और तुषार जी आपने जो बोला, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन पंचम अनमिक्स वाज स्क्रीन्ड इन पीवीआर अक्रॉस इंडिया। तो पीवीआर में पहली बार एक तरह से ऐसा हुआ कि इंटरवल हुआ, कोई बाहर ही नहीं गया, लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे आप भी आर डी बर्मन के, आप भी, अच्छा तो ये वो सीन देखा आपने, आशा जी ने क्या बोला, वो देखा गुलजार साहब। फिर फिल्म खत्म हुई तो वाकई अशर्स हैड टू कम एंड से कि सर वो नया मैम अगला शो। तो एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म जो एंटरटेनिंग भी हो, सब्जेक्ट ऐसा जो अनफॉर्चुनेटली व्हेन पंचम दा डाइड पीपल थॉट he was just another great musician, but the way his popularity rose and the way, I mean, it got a lot of youngsters interested in our so-called legacy of film music. और मेरे ख्याल से आज ऐसी फिल्में ओपी नैयर साहब पे या सलील दा पे और हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं सब पे बन सकती हैं। तो एक तरह से ये रास्ता खोला है ब्रह्मा ने, तो kudos, kudos. Brahma, you have so many subjects to cover. Yes. Brahma sir. Wow, so well said, Gaurav ji. Very nice. Very well said. Beautiful. Yeah, I would be the first one to see Salil Da's film or a film on Nayyar Saab or Naushad Saab or Anil Da. I would be the first person to go and watch it. They are my favorite people, favorite music directors, favorite people. I feel that I was born 25 years late then, क्योंकि मुझे जो कुछ अच्छा लगता है उस एरा का अच्छा लगता है जो ये दौर था। और ये क्लासिक्स की बात ही होती है कि उसको जितनी बार देखें एक नई परत खुलती है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, कल ही 2 गानों के बारे में मैं सोच रहा था। मैं राज कपूर साहब की पहली फिल्म आग का एक गाना है, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, उसमें क्या बात है कि वो मुद्दतें हुई है किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। फिर आई केम अक्रॉस द सॉन्ग बरसात, छोड़ गए बालम मुझे आया अकेला छोड़ गए। उसमें अंतरा है, पहले मन में आग लगी और फिर बरसी बरसात, ऐसी चली बिरहा की आंधी। अब आप सोचिए, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पहले मन में आग लगी, राज कपूर साहब की पहली फिल्म थी आग,
और फिर बरसी बरसात, बरसात वाज द सेकंड फिल्म। हम्म, इसके बाद तीसरी फिल्म आती है आवारा, उसमें गाना है हम तुझसे मोहब्बत करके सनम। ये दिल जो जला एक आग एक लगी। आग लगी आंसू जो बहे, बरसात हुई बादल की तरह आवारा थे हम। वाह। कितनी डेप्थ है हर बात में, सोचा लिखने ये वालों में। ये डेलिबरेट है, हाँ, ऑफ कोर्स, ये बहुत डेलिबरेट हाँ, किया गया है, यस, और ये बहुत खूबसूरत है that ब्यूटीफुल। you have noticed it, and it's very nice that you noticed, but this is a deliberately written for this. ऑब्वियसली हम्म, कोइंसिडेंस, थोड़ी कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल डेलिबरेट है। बहुत डेलिबरेट है और बहुत अच्छी तरह किया गया है, और बहुत और गाने टेस्टफुली, तो बहुत ही बहुत टेस्टफुली किया गया है, बहुत सटली किया गया है, कहीं भी हाँ, चालाकी नहीं नजर आता है। इट लुक्स नाइस, ऑर्गेनिक। ये मास्टरपीसेस हैं, इसीलिए क्लासिक्स हैं। और ऐसे ही कागज की कश्ती को हम देखें जितनी मर्जी बार, हर बार एक और लेयर खुलती है। जितने भी जगजीत सिंह साहब के भक्त हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो तो इन ब्रह्मानंद जी के भक्त हैं। हम तो इनको एक बात कहते हैं, पिछली बार भी मैंने कही थी, फिर कह रहा हूँ, कोई नए हो तो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। दे चुके आप मेरे आने से पहले। ओके, वो मेरा एग्जाम्पल, आप मैंने मुझे नहीं सुना, कोट किया करिए वो मुझे कि वो मैंने मैंने नहीं सुना। आप प्लीज फरमाइए क्या कह रहे हैं। अनिला जी कहिए जरा, आपने ठीक से कहा कि नहीं, मैं चेक करना चाहता। आप बोलिए, मैंने तो मैं कहा था कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचकर अपने आप को भी अमर कर दिया, तो वैसे ब्रह्मानंद जी ने कागज की कश्ती को बनाकर जगजीत सिंह साहब को क्या, और अपने आप को भी जग को जीत लिया इन्होंने बनाकर। और वैसे ही पंचम, दोनों बातें। तो जब जगजीत सिंह साहब का अगर अब उनकी बात होगी तो ब्रह्मानंद जी के इस काम के बिना अधूरी है वो उनकी जिंदगी। मैं कहता हूं कि आर डी बर्मन और जगजीत सिंह, मैं आर डी बर्मन का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत मानता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये दोनों लकी हैं कि ब्रह्मा चोज टू मेक अ फिल्म ऑन देम। ट्रस्ट मी, अदरवाइज क्या बन जाता और क्या हो जाता, और कई बार लेगेसी काफी, क्योंकि एक बार फिल्म बन जाए फिर दूसरी शायद कोई ना बनाए। We are so thankful that Brahma you picked those subjects, and I'm sure they are both so. I'll repeat myself once more that I consider myself fortunate कि मेरे हाथों ये दो फिल्में बन गई और सबको अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छा काम हो गया, and that's it. I think कोई और भी बना सकता था, और इतने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, there is no doubt about that. But कुछ coincidence था, कुछ इनिशिएटिव था, कुछ जज्बा था, कुछ तकलीफ सहने का की ताकत थी, तो आई थिंक सब मिला करके फिल्म बन गई। आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट। और वही चीज जब तुलसीदास जी रामायण लिखने बैठते हैं तो वो वही कहते हैं सबसे पहले के 20 पेज में यही होता है कि आई एम फॉर्चुनेट, आई एम थैंकफुल, आई एम लकी कि मेरे हाथों से ये लिखा जा रहा है। सो आई थिंक कोई भी अच्छा काम, कोई भी बड़ा काम, like I always say कि you are the means, and through which of course it's your sensitivity, it's your skill, it's your intelligence, but there is something much larger than all that is always at play, and those are the things that we don't know, that we can't even fathom sometimes. मैं अक्सर बोलता हूँ वो कृष्ण और अर्जुन वाला जो कहानी है, जब उनको वो तीर मारना था मछली के आंख में, वो भी पानी में रिफ्लेक्शन देख के, तो गए थे कृष्ण के पास कि भैया यू हेल्प मी, तुम तो भगवान हो, मेरे सखा हो, तो हेल्प मी डू दिस। तो कृष्ण से दैट बॉस आई कांट डू, तीर धनुष तुम्हारे हाथ में, निशाना तुम्हारा है, अगर इनसिक्योरिटी अभी भी है तो 2 घंटा टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, अभी भी वो मारना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अर्जुन लॉस्ट हिज कूल ऑन कृष्णा। ही सेड दैट क्या बात कर रहे हो, मतलब अपने आप को भगवान बोलते हो, मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो, मेरे रिश्तेदार हो, ये सब इतना सा काम भी नहीं करते हो तो क्या कर सकते हो, तो क्या करोगे। तो कृष्णा से ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, मगर मैं वो करूंगा जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ और जिसका तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। तो इसे वो क्या है, मतलब मारना है मुझे, हाँ, निशाना मुझे साधना है, तो what will you do? So he said, for those 2 minutes I will keep the water
still. Because if the ripples continue, you'll never be able to hit, no matter how perfect your aim is, because you'll not get the right reference point. And I always feel that there are so many invisible Krishnas in our lives, who help us hit that bullseye, that fish's eye. But we think that हम तीर धनुष चला रहे हैं. एक कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था. हस्बैंड वाइफ 100 किलोमीटर दूर जा रहे थे, वाइफ्स पेरेंट्स के यहाँ, तो ऑन अ संडे मॉर्निंग. तो हस्बैंड सेज दैट अरे यार चक्कर है, मतलब, एंड इट वाज अ एक्सप्रेसवे ड्राइव, फ्रीवे ड्राइव, तो बहुत दूर दूर तक पेट्रोल पंप, कहीं पे गैस स्टेशन नहीं था. यूएस की बात है. तो वो दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे, कि बीवी बोल रही थी कि तुम्हारा तो यही आदत ही है, क्योंकि मेरे माँ के यहाँ जा रहे हो इसलिए जानबूझ के ये सब कर रहे हो, परेशानी, ये एटसेट्रा एटसेट्रा. तो द 7-year-old child tried to humor them up, and she was sitting behind her dad on the wheels. So she tried to push the seat and said, "Daddy, don't worry, I'm going to push it." Our dad also tried to humor her. "Yes, keep on pushing. I think we will reach." And actually they reached. Wow. Actually they reached the place. And now what happens is the most interesting part. So doors open, she jumps, the grandmother was there to receive. 7-year-old goes and jumps into her arms and said, Granny, you know what? We ran out of gas today. I pushed the car. I made the car come here. Okay. And वो जो इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहा था, वो ये बता रहा था कि हम सबको ऐसा लगता है कि जो हम सब वो 7 साल के बच्चे की तरह हैं, कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं. And we are probably so I think there are certain things that you do and you must do, and that is why it's your work. There is no doubt about that. But you must be accepting enough to know that there are other forces that are at work. What are those forces? We don't know. But things align, things come together, things happen. Yeah. Brahma, having seen your journey, since this will go forever on Facebook and people will watch it, I'm reminded, Michelangelo once said that if you know the work that I do, the hard work that I do behind my masterpieces, you will start hating my work. I know. And knowing you, I'm getting a little personal, but I think everybody should know that you have literally given a piece of your life, yes, a lot to bring these lives on the silver screen. So I think that has been, and I know the kind of journey you have personally gone through. While you are being humble about all the forces, but I think the gravity is with you, the pivot is with you, the lever is with you, the leverage is with you. Let every other force be with you. But I think good. No, I accept. I accept my role also, but I'm aware that there are many things that यही तो बड़प्पन है, यही तो फलदार वृक्ष वाली बात है. और ये इनके जो काम है, what the feeling I can see, we can all see that is detachment. I mean, कर तो रहे हैं अपना कर्म, जो exactly गीता का संदेश है कि काम तो करना है, लेकिन उसे अटैच नहीं होना है, अपना ईगो नहीं जोड़ना है. तो यही he's doing it and just dedicating it to some forces, some universe. But of course, जैसे आप ही हम जानते हैं कि what you mean, क्योंकि आजकल तो उल्टा सुनने को मिलता है. आजकल तो ऐसा काम किया जाता है और I did that, ये सब एटीट्यूड है आजकल संसार में. हम तो संगीत में तुषार जी हमारे सीनियर है, अब हम तो उसी अदब वाले हैं कि कहीं कोई मिलता है, अरे अब कुछ नहीं आता, अभी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए और नया कोई 2 गाना सीख के आता है, अपना एल्बम बनाता है, अपना वीडियो बनाता है ऑटो ट्यून करके उसको, और खूब मिलियंस लाइक्स हो जाते हैं, और वो ऐसे घूमता है. जी सर, कुछ कह रहे हैं आप तुषार जी? मैं कुछ टैगोर की बात कोट देना चाह रहा था यहाँ पे. Since it's Brahmanand's birthday, it will be very nice to talk about Tagore. Tagore talks about creativity and the whole process of creativity. I'm sure he is referring to the songs that he created or the poems he created.
or maybe creativity in general. But since he has mentioned words, I have never before or after seen music creation being explained in any poetry by anyone. And even if they try, I don't think they will ever reach the height or the clarity or the mystical quality of Tagore. And I must say before I start the poem that I know this as a song by Pankaj Malik Sahab in the film Mukti, in which he introduced Tagore's music for the first time, 1937, with the permission of Tagore. And Tagore also gave the name Mukti. So Pramotesh Barua, उसका एक दूसरा स्टोरी लंबा हो जाएगा. अनिला स्माइलिंग थिंकिंग कि ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा 1 घंटा और. But I will just come straight to the song which Pankaj Babu has sung. This is a process of creativity and creating music, creating lyrics. He says, आमी कान पे ते रोई, मैं कान दे के सुनता हूं. कहाँ? ओगो आमार आपुन हृदय गहन दारे बारे बारे. मैं मेरे अपने हृदय के गहनतम द्वारों में बार बार कान देकर सुनता हूं, सुनते रहता हूं. भ्रमर जथा হয় বিভাগী, কোন নিভৃত পদ্ম লাগি, কোন রাতের পাখি गाए एकाकी सौंगी विहीन अंधकारे बारे बारे. जैसे भ्रमर गुनगुन करता है कोई बंद पंखड़ी में, और जैसे रात का कोई पंछी अकेला गाता है, विदाउट एनी कंपनी गाता है, बार बार गाता है, वैसे मैं अपने दिल में सुनता हूं. कौन गोपन हाशिर कान, कौन गोपन बाशिर कान्ना हाशिर, गोपन कथा सुनी बारे बारे बारे. कौन सी छुपी हुई बांसुरी की का रुदन और हास्य, उस हैप्पीनेस एंड सॉरो की बातें. कौन गोपन बाशिर कान्ना हाशिर, गोपन कथा छुपी हुई बातें सुनी बारे बारे बारे. देखो एक तो यहाँ वर्ड प्ले जबरदस्त है. इट्स गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबडी लेस. वो सुनता रहता हूँ, छुपी हुई बांसुरी जो अपनी खुशी और गम का इजहार करते रहती है, वो मैं बार बार सुनता हूँ. आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? केश मोर केई बाजाने. वो मेरा कौन है जो मुझे ये सुना रहा है? कौन जाने. केश मोर केई बाजाने, किछु तार देखी आभा, किछु पाई अनुमाने, किछु तार बुझी ना बा. कुछ तो उसका आभा देखता हूँ, उसका हेलो देखता हूँ. किछु तार देखी आभा, किछु पाई अनुमाने, थोड़ा अनुमान कर लेता हूँ, गैस बुक कर लेता हूँ. किछु तार बुझी ना बा, बाकी तो मुझे समझ में भी नहीं आता है कि ये कौन है मेरा जो ये सब गाना गाता है, बांसुरी बजाता है, मुझे कुछ कहता रहता है, जिसको मैं बार बार अपने गहनतम द्वार में सुनते रहता हूँ. आगे सुनो, यहाँ पे ओवर बाउंड्री पे ओवर बाउंड्री पे ओवर बाउंड्री है. माझे माझे तार बारोता, आमार भाषाएं पाए की कथा रे. बीच देखो, वार्ता भाषा कथा, they all mean the same thing apparently. See the shades of words. माझे माझे तार बारोता, आमार भाषाएं पाए की कथा रे. बीच बीच में उनकी बात मेरी भाषा में कैसे अर्थ पाती है. ओ शे आमाए जानी पाठाए बानी, मुझे अपना गिनता है और अपनी वाणी भेजता है. कैसे? गानेर ताने लुकिए तारे बारे बारे. गानों की तान में अपने आप को छिपा छिपा कर बार बार भेजता है. All my creativity is attributed to that unknown. Exactly what Brahmanand is saying, and what any artist would feel after a point of creation. क्योंकि वो होते रहता है, क्योंकि वो माइंड वो अवस्था में है. It is connected to another level of inspiration, और वो होते रहता है. कैसे होता है वो इससे ज्यादा कोई समझा नहीं सकता. It's a song. It's a song sung by Pankaj Malik Sahab. Beautiful. It is so brilliant. Thank you. So this is dedicated to our most creative Brahmanand Singh. Absolutely. Thank you so much. And I would just request Sahib, वो हम लोग एक्चुअली ब्रह्मा सर का बर्थडे है, वी वांटेड टू गिफ्ट हिम अ स्पा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा वर्चुअली, तो साहिब कुछ गा रहे हैं ब्रह्मा सर के लिए. यस साहिब, फटाफट गाओ. Okay.
तो मैं फिर से आके हूँ बहुत बड़ा सा गीत लेके। तो मैं ब्रह्मानंद सर के लिए छोटी सी शायरी कहूंगा, उसके बाद मैं गीत शुरू करूंगा। तो मेरी शायरी के बोल पूछते हैं। खुशियां हमें बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँवों से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है। आए म्यूजिक वरांडा में खास मेहमान है, आए म्यूजिक वरांडा में खास मेहमान है। तालियों के स्वागत कर इनका, तालियों के स्वागत कर इनका, क्योंकि यही हमारी महफिल की शान है, महफिल की शान। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं गाने लेके आऊं, मालिश तेल मालिश, और इसके गीत कुछ ऐसे हैं। मालिश तेल मालिश चंपी, सर जो तेरा चकराए ये दिल डूबा जाए। आजा बारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए। दिल मेरा है मुस्की, गंद रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फेरा तू चमके किस्मत उसकी। दिल मेरा है मुस्की, गंद रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फेरा तू चमके किस्मत उसकी। सुन 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 सुन, अरे इस चप्पी की एक दवा है क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए। थैंक यू। वाह, Thank you so much. I don't know it was out of this song was out of context or in Oh, context. no, it was not out of context because this is R.D. Burman's composition, which Bade Burman Saab, with his permission, took it. ऐसा मैंने सुना है, तो पंचम दा के ऊपर जिसने फिल्म बनाई उसके लिए तो ये अप्रोप्रिएट है। Yes, yes. ऐसा सुना है कि पंचम दा was playing this on a harmonica and Burman Da, Bade Burman Da had to compose a song and he says कि ये मैं लेता हूँ. So this is actually Pancham Da's first composition which is used in films. He first, so this was when he was already assisting Sachin Da, so he composed this. for He Pyar. was no, he was 14, 15 years old. That was Fantush. "Ae Meri Topi Palat Ke Aa." I वो thought it was नौ this साल also. की I उम्र don't know में- if Pyasa if was assisting. Wasn't he too young for that? No, Pyasa he was. So This he is had what also- he said. Maybe you're right, but this is what he said that it is his composition. जी, it is Pancham's composition as an assistant. और "Ae Meri Topi Palat Ke Aa" is as a student which he played on the mouth organ. Okay. In fact, प्यासा में पंचम का काम देख के गुरुदत्त signed him for Raz. He was launching him in 1958. जो बनी नहीं, खैर. But I wish बनी होती वो. seriously, He had recorded, I think, one song with Geeta Dutt and Hemanda. I think I'm not very sure. दो गाने हैं हेमंत कुमार और गीता दत्त जी. दो वो गाने. गाने मिल सकते हैं क्या कहीं से? वो बाद में he used one of them in Bombay to Goa. एक गाना हमें पता चला बाद में जो उन्होंने कौन सा यूज किया? वो ड्यूएट है वो डुएट है. So it is लता जी और किशोर दा का ड्यूएट है. जी वही वाला गाना. हाँ. बॉम्बे टू गोवा. दिल तेरा है मैं नहीं, the other one. मैं वो याद आएगा, मैं आपको बताता हूँ. ब्रह्मा, we just heard सर जो तेरा चक्र है, तो पंचम की बातें. Okay. Lovely. I missed out. My battery went off, so I had to re-log in, reconnect. Yes. साहिब ने आप तुषार जी के वो टैगोर गुरुदेव जी का वो पंक्ति से मुझे एक लगा, देखिए कितनी अलग जगह है, कहाँ यूरोप और कहाँ बंगाल, लेकिन कलाकार जो अंदर कवि होता है, सबकी बातें कितनी रेजोनेट करती हैं एक दूसरे में. तो शैली की मुझे वो टू स्काईलार्क पोएट्री है बहुत, उसका एक फ्रेज बड़ा फेमस है जो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, sincerest laughter with some pain is fraught, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. और शैलेंद्र जी ने बाद में इसको थोड़ा सा अपने तरीके से पिरोया कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं. तो टू स्काईलार्क में वो एक चिड़िया से ही सवाल करते रहते हैं शैली जो है कि कैसे तुम ये करती हो, कैसे तुम वो गाती हो, कैसे तुम ये, मतलब
what he's trying to say in that poetry is कि इंसान की जो कभी भी गाना है वो तुम जैसा नहीं हो सकता, वो क्योंकि इंसान हंसता भी है तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक टीस छुपी रहती है, उसके अंदर एक दर्द छुपा रहता है, उसको अपने एहसास है कि मैं नश्वर हूँ और मुझे क्या कष्ट है, जबकि पक्षी को शायद एहसास नहीं है, वो बस है। और हम हैं लेकिन हमें कुछ और भी आगे दिखता है और सोचता है, तो वो हमारी हंसी और खुशी में भी एक कहीं ना कहीं एक, तो वो बहुत अच्छी पोएट्री है। और वो मुझे वो याद आ रही थी तुषार जी जब आप उसको टैगोर ने लिखा है एक बहुत सुंदर, जो जगजीत साहब की गजल में है। कौन सा किन्होंने लिखा आपने बताया? रविंद्रनाथ ने लिखा है, तरुण हाशी राड़ाले कोण आगून ढाका रोए की को बिशोए, तरुण हंसी के पीछे कौन सी आग ढकी हुई है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो। कैफी साहब ने वहां से लिया। वाह कामी तरुण गोलार गान শুনি দেখা পেলেম ফাল্গুনে, এতদিন কানন দেবী, that's how I know the song, এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে। Beautiful. क्या बात है। And Jagjit Sahab made it immortal. Oh my God, जगजीत साहब की composition is so brilliant, मतलब कमाल है वो गाना कमाल है। वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी और जगजीत साहब की आवाज, उनकी कंपोजिशन, कुछ सोचने की बात नहीं है। Just feel happy कि it's there. We have to be grateful. ज्यादा मतलब कल रात से मैं ब्रह्मा सलील्लाह के गाने सुन रहा हूँ, आज सुबह भी गाने सुन रहा था। अन्नदाता, नैन हमारे के 3 अलग अलग बांग्ला वर्जन्स है, शोभा राडाले और गुरु 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 और एक कविता जी का है। मतलब मैं सोचने लगा कि ये है क्या, मतलब then I said just be grateful, it is there, no need to analyze it. I know. इन लोगों का काम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम हिमालय के सामने खड़े हैं या हम एक बहुत बड़े समुद्र के सामने खड़े हैं, और क्या कि अरे बाप रे कितना कुछ हो चुका है। हम तो ऐसे अपने शुद्रता का एहसास होने लगता है कि इतना बड़ा काम हो चुका है। और अमरीश न सिर्फ हो चुका है, लेकिन टू व्हाट परफेक्शन वो हुआ है, वो क्या परफेक्शन पे हुआ है इन द टेक्नोलॉजी, जो अभी आज की जैसे एडवांस नहीं है, फिर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा है आज के टाइम से। बहुत अच्छा, बेशक। आज के टाइम से अगर पंचमदा की बात करें तो जो साउंड वो लेके आते थे एज अर्ली एज तीसरी मंजिल और पड़ोसन, और जो साउंड जगजीत साहब लाते थे, वो साउंड का भी अपना एक अलग मैजिक और मजाक होता था अलग से, नॉट जस्ट द कॉम्पोजिशन, नॉट द लिरिक्स, वो साउंड जो एक होता था ना। तो एज अ टीनेजर, अर्ली टीनेजर इन दोज डेज, जब राजेश खन्ना का ईरा था और पंचमदा के गाने उस वक्त अलग बाकी लोग भी कर रहे थे, मतलब सभी लोग बहुत रिस्पेक्टफुली मैं कह रहा हूँ, ये लाइव जा रहा है इसके लिए, तो मतलब कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, लेकिन पंचमदा का काम अलग था, एकदम अलग था। वेदर इट वाज दम मारो दम और ये शाम मस्तानी, वो साउंड ही अलग था। बिल्कुल। और ये दोनों एक्चुअली अपना मिक्स खुद करते थे लार्जली। बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकली, मतलब एक होता था, और ये नौशाद साहब में सबसे पहले मैंने देखा कि यू विजुअलाइज अ साउंड दैट यू वांट टू क्रिएट एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स कि मुझे ये क्रिएट करने के लिए क्या क्या लगेगा। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, तो जैसे प्यार किया तो डरना क्या में वो एको चाहिए था उनको, तो लता जी से रिपीट करवाया, मतलब मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। या लता जी ने खुद ही बोला था कि आएगा आने वाला में खेमचंद प्रकाश साहब को एक दूर से आवाज आती ऐसे चाहिए, और कोई दुनिया में मशीन नहीं थे वैसे, तो दूर से चलवा के उनको टिल वो बड़ा सा एक मतलब शेर है, जो 2 शेर हैं, खामोश है जमाना चुपचाप, धीरे धीरे ऐसे चल के उनको जान, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, कि हमको क्या क्रिएट करना है, हमको उसका इफेक्ट कैसे मिलने वाला है, कैसे होगा, वो जबरदस्त वो चीज है, जबरदस्त। वो क्या, मैं तो आज तक मैं इस बारे में कई साउंड से चर्चा करता हूँ कि ये जो उसमें जो ग्रुप वालन का पार्ट है, वो जो पूरा चलता है, इतना
ऐसा लगता ही नहीं कि वो 40s की रिकॉर्डिंग है। तो इतना रिच साउंड करता है जैसे कोई, बहुत रिच है, बहुत रिच है। वो कैसे क्रिएट किया। मैं तो कभी, शायद मुझे किसी ने बताया कि वो स्टूडियो था जो उनका, उसमें जो टिन का शेड बहुत ऊंचा था और वहां जाके शायद उन्होंने महबूब स्टूडियो में किया। हाँ, सो वहाँ पे सो द साउंड इंजीनियर हैड रिफ्यूज्ड टू रिकॉर्ड, क्योंकि म्यूजिक स्टूडियोज होता नहीं था, शूटिंग स्टूडियोज वही टिन टिन वाले शेड में, एंड ही हैड 100 पीस ऑर्केस्ट्रा, 100 वायलिन पीस। तो so he called for 150 mattresses and 150 कम्बल। एक एक को मैट्रेस को शायद फ्लोर पे डाला और कंबल को छत पे, and he said now let's try, and when he, this was for Aag 51, and when he went for mixing the song in London, they could not figure out how he had done it. These were the things that they would use their imagination based on the limitations, and they would still excel. And that's what we are talking about, ki how they would do it in those days with technique in such primitive state, and still they achieved things which they are not able to do with autocorrect and all this nonsense. US वगैरह में तो there is a different music producer and there are different set of people working on one song. हमारे यहाँ एक composer अपने arranger मिल करके, जो जैसे तुषार जी ने कहा कि they used to visualize कि मुझे क्या चाहिए, फिर वहां से बैक कैलकुलेट करना। बहुत बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तुषार जी, वो गाना है तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। Do you have that song recorded? है क्या वो? बिल्कुल रिकॉर्ड। No, so that's the song he used in Bombay to Goa. No, I mean the Hemanda Gita नहीं, ki song. No, that never came out. I would love to hear it. He never ever took Geeta Dutt and Hemant Kumar in his career except one song of Hemant, one or two songs of Hemant Kumar. Hemant Kumar, हाँ। एक तरह से आरडी ने उनको रिपीट ही नहीं किया कभी। सी पंचमदा के लिए तो घर की बात थी ना, ये लोग का आना जाना मतलब डेली बेसिस पे होता होगा। ये तो पंचमदा के रिकॉर्डिंग में आना जाना, ही काइंड ऑफ ग्रू अप इन द लैब्स सो टू स्पीक। उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि ही वाज अप्रोच का कोई प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। ही वाज एसडी बर्मन सन, एंड आई थिंक इन माय हम्बल ओपिनियन he made the best use of the background that he was born in. The most brilliant use, I feel. What a student. क्योंकि मजरू साहब का कांटेक्ट लता जी, आशा जी, अंकिता जी और हेमंदा, किशोरदा, रफी साहब जो भी है उनका अप्रोच टू एवरीबडी वेरी इजीली। एंड बर्मंदा का रिस्पेक्ट, एस डी बर्मन साहब का बहुत रिस्पेक्ट, जबरदस्त रिस्पेक्ट था इंडस्ट्री में। ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो वेरी सीनियर इन एज। तो बहुत उनको मतलब फादर फिगर जैसे भी मोस्ट सिंगर्स वैसे भी मानते थे उनको। तो वो पंचमदा को वो ईज एक जो अच्छा मिला उनका, उन्होंने बहुत सदुपयोग किया मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू से ब्रह्मा? Absolutely, absolutely. It was a very great advantage and he used it brilliantly. But he didn't let it go waste. No. ठीक है जी, over to Anila. Are we getting very late? I would like to now just say good night. This is how when you know good minds meet, तो ये चलते रहता है। And this is गुणियन की चर्चा सुजान करिए जो कंपोजिशन है। तो एक गाना ब्रह्मा सर से तो सुनना बनता है आज मेरा बर्थडे है तो आज मेरा माफी चल जाएगा। अगले दिन कर देंगे। अभी तुषार सर आपसे तो एक गाना हो जाए। मैंने तो टैगोर की पोएम रिसाइट कर दी, उससे ऊपर क्या होगा? डॉक्टर अनुराधा, any closing song, Gaurav ji, anything? Yes. Dr. Anuradha can do the closing song, and then I will sing 2 lines of Majru Sahab from Bimal Das film. बर्मंदा का गाना है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सूरज रोज आता रहे, रोज जाता रहे, लेके किरणों के मेले,
पल छिन घड़ियां गिन गिन तेरा हर दिन, तब तक रंगों से खेले सूरज आता रहे, हो जाता रहे, तब तक रंगों से खेले। पल छिन घड़ियां गिन गिन तेरा हर दिन, तब तक रंगों से खेले ओ नूर, जब तक बाकी है सितारों में तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वाह, थैंक यू सो मच एक एंड थैंक शेर, यू, थैंक एक यू शेर ब्रह्मा जी के लिए चलते चलते याद आ गया। थैंक यू। ये तो एक रस में जहां है जो अदा होती है, ये तो एक रस में जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे अमरीश। थैंक यू। मुझे शायर का नाम मालूम नहीं है, शायर कौन है, नहीं तो मैं नाम उनका जरूर बताता। मेरा नहीं है ऑफ कोर्स। कोई नहीं सर, हम आपको ही याद रखेंगे अमरीश भाई, आपने ही सुनाया था। Thank you everyone and thank you Anila for this wonderful couple of hours. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you so very much. Thank you Gaurav ji. Thank you sir. Thank डॉक्टर you. अनुराधा का गाना मेरे ख्याल से क्लोजिंग हो तो अच्छा है। हाँ डॉक्टर अनुराधा गा दो, कोई गाना जोर से आ रहा है तो एकदम सुना। Happy birthday, Brahma sir. Thank you जी। And always be happy and keep on smiling, which is so divine. You smile. और अब मैं ये जो गाना गा रही हूँ वो है आरडी सर का ही, ऐसा समा ना होता। और एक्चुअली एमवी में ऐसा समा नहीं होता, हम जूम करते रह जाते, ना लेजेंड्स को सेलिब्रेट कर पाते। एवरीथिंग वाज बीन गाइडेड बाय यू, तो ऐसा समा ना होता एमवी में। दिस वन फॉर यू। थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता। मौसम ये न आता यूं न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा। मौसम यूं न आता यूं न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा। गुल शबनम के मोती न पिरोते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ब्रह्मा सर जो आप ना होते। थैंक यू। थैंक यू। बहुत जोरदार पार्टी रही, मजा आ गया। थैंक यू अनिला जी बुलाने के लिए पार्टी में। थैंक यू। आई डॉक्टर है ये डॉक्टर अनुराधा, और पेशेंट्स को ये बोलती है बस गाने सुन लो ठीक हो जाओगे, और एक्चुअली लोग ठीक हो जाते हैं क्रोनिक डिजीज से। हर मैजिक। बहुत सुंदर गाया डॉक्टर मैडम ने। मैं तो समझ रहा था म्यूजिक की पीएचडी डॉक्टर। वो है माँ श्वेता, वो भी डॉक्टर है। आज वो आई नहीं है यहाँ। हाँ आज नहीं है। ये बस कि आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड म्यूजिक वरांडा वी हैड नो क्लू, बट बहुत जल्दी ब्रह्मा सर एज इफ यू नो गॉड व्हेन ही सेंड्स योर पर्पस ही आल्सो सेंड्स एंजल्स एंड गाइड। तो ब्रह्मा सर को भेजा हमको गाइड करने के लिए। तुषार जी, देवी दत्त सर, वी आर मिसिंग देवी दत्त सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ दिनों से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वी रियली विश दैट वो जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज वरांडा इज रियली मिसिंग हिम एंड वी लव यू देवी सर। आई होप वो उनको आज आना था, वो आ नहीं पाए। तो थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू एवरीवन फॉर एंड चीजें बहुत देर से तो बोल दो आप कुछ। मैं क्या बोलूं। ब्रह्मा सर के बारे में मैंने ना एक फुल फॉर्म बनाई थी। आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसा विश करूं कि कुछ अलग सा हो, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं और
तो मैं सोचा कि चलो ब्रह्मा सर का अगर वैसे आज मदर्स डे, तो थोड़ा इमोशनल हो गया था कि ब्रह्मा के अंदर के भी माँ दिख रही है मुझे, शी इज सो केयरिंग। तो मैंने उनकी फुल फॉर्म बनाई थी कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू माइट वांटेड टू लाइक कोरिलेट, कि बी एज एन बोल्ड, इज सो बोल्ड एंड रोमांटिक। ऑफ कोर्स जो पर्सनालिटी में और जो चीजें हैं कुछ लोग शो नहीं करते, बट ऑफ कोर्स एंड ही इज ऑसम, ही इज एन ऑसम। हम्बल, हमें सबको पता ही है, मतलब वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एम एज ए मैग्निफिशेंट, ए अमेजिंग एंड एज ए नॉटी। शायद जो लोगों ने बहुत करीब से इनके साथ में काम किया हुआ है, जो हरकतें हैं, चीजें हैं, तो इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेट। एंड ए एज एन एडवेंचरस, ऑफ कोर्स हम लोग इतने टाइम से ब्रह्मा सर के साथ में हैं और बहुत सारी जो कहानियां सुनाते हैं खजानों में से, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ एडवेंचर्स आर स्टिल देयर टू कम एंड नाइस, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय डैशिंग. So that makes Brahmanandji, and we are so fortunate and blessed that you are our mentor and you are the creator, as they say. So thank you so much for the person you are, and keep smiling, keep rocking, and we wish कि आपके जो भी upcoming projects हैं वो super successful हो और आप अपना ऐसे प्यार बरसाते रहें और हम सबको इंस्पायर करते रहें. So lot of gratitude from whole Music Veranda family. कुछ लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए, बट ग्रुप्स में हम काफी लोगों ने बहुत अच्छे से विश किया था, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय देवी दत्त सर, वो भी आपको विश कर रहे थे, उनकी तरफ से भी हम आपको विश करते हैं. और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल यू लवली पीपल फॉर ज्वाइनिंग एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन, कि हमारे कहने पे आप सब लोगों ने आज यहाँ पर आए, अपनी बातें शेयर करी, और ये वो खजाना है अभी, मतलब हम लोग ने इसलिए सुन रहे हैं कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, एंड आई एम श्योर कि जो लोग इसको दोबारा देखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू चेरिश इट फॉरएवर. सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई आस्क गौरव शर्मा जी टू से एनीथिंग ऐड ऑन, maybe and then we'll wrap up. No, thank you. Well said, Gaurav. आपके बाद मैं क्या बोलूं? I think, Brahma, I guess all of us are eagerly waiting for more and more to come. Dil mange more. Your end, I think we would like to wish you with a lot of happiness and the ability to share it with us through your work. And as I said, may the force be with you. And we are all there. You just have to give us a shout, and we are there whenever you need us. And God bless you, and God bless Music Veranda. God bless all of us. Have a lovely night, everybody. Great. Okay, thank you. Thank Great. you very Good much. night, Gaurav Jain ji, much. Gaurav Sharma ji, thank you. Thank you. Tushar Thank you ji, very and of much. course, Good night, Gaurav. Both the All the best, Gauravs, Amrish ji. Sharma and Jain. Gaurav Jain, thank you for your wishes. I couldn't acknowledge it earlier. And thank you, Anila, for inviting me. And Brahmanand, just thank you for being. Thank you so much for being here and sharing and expressing such wonderful emotions. Thank you. Okay, good night. Okay, good night. bye bye to Anila ji and Radha ji. Namaste. Bye bye. शादी का पर जाना. Bye bye. मैं